Welcome back once again. This is the new session, Word Power Made Easy. From now, session name is how to talk about science and scientists. Today we will learn about all the words, mostly words which is related to science. It will also come under the English vocabulary. Okay. So we have to know today's science and scientific word, and those are related to scientists. So first of all, we have to know what is science. Can you tell me? Shivam, what is science? No. एग्जैक्टली हमको इसका डेफिनेशन पता नहीं है. Simply you can say that systematic knowledge on the basis of experiment. Okay. Now, what or who is a scientist? First of all, we have to know teacher preview from by this book. Is interested in the development of human race. Is a student of heavens. Explores of the physical qualities of the earth. Studies all living matter. Is a student of plant life, is a student of animal life, is passionately involved in insects, is a student of language, is a student of psychological effects of words, studies the culture, structure and custom of different societies. All these who studies, that person will be known as a scientist. There are many sectors in which you study. Those will come under scientist. Okay. So, are you a scientist? No. But try to be a scientist of the world's language. Okay. Now, something review. A true scientist lives up to the etymological meaning of his title, one who knows. Anything scientific is based on facts, observation, facts that can be recorded, tested, checked and verified. Science then deals with human knowledge as far as it has gone. It has gone very far indeed since the last century or two, when we stopped with basing our thinking on guesses, theories that had no foundation in reality and concept of how the world ought to be, and instead began to explore the world as it was, and not only the world but the whole universe. From Galileo, who looked through the first telescope atop a tower in Pisa, Italy, Pasteur, who watched microbes through a microscope, to Einstein, who deciphered riddles of the universe by means of the mathematics, we have at last begun to fill in a few areas of ignorance. Who are some of the more important explorers of knowledge, and what terms are they known? So, ideas. First, one who knows about mankind. One who knows about mankind. One who studied about mankind. जो मानव के बारे में अध्ययन करता है. Can you? What is called? Tell me. Mankind means the field is all mankind, how we develop in mind and body from primitive cultures and early forms. How we developed from body and mind, from ends primitive to present. Also in culture and customs. Okay, हम लोग कैसे डेवलप किए बॉडी से, माइंड से, प्रिमिटिव मतलब पुराने समय से अभी समय.
मैनकाइंड का अध्ययन करने वाला वही है जो पुराने समय के मानव को और अभी के मानव को कंपेयर करता है और बताता है कि कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुआ। तो उसका जो मैनकाइंड के बारे में अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, बताइए। ये करवाया गया था पहले। नहीं, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो मानव के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो समझ गए कि हम मैनकाइंड के बारे में जितने भी चीज के बारे में उसके मतलब स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहा है तो तुम क्या कहलाओगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। हो गया मानव शास्त्री। नेक्स्ट, व्हाट्स एबव, व्हाट्स एबव मतलब हम लोग जहां रह रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है, मतलब स्टार, गैलेक्सी, सन हमारे ऊपर है, ठीक है। तो इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा या अध्ययन करने वाला कौन कहलाएगा, एस्ट्रोनॉमी। तो व्हाट्स एबव का मतलब द फील्ड इज द हेवंस एंड ऑल दैट्स इन देम, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार एंड अदर यूनिवर्स। तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, बोलो। एस्ट्रोनॉमी। एन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, एन एस्ट्रोनॉमर। अच्छा, जो नीचे के बारे में अध्ययन करेगा, हम लोग जहां हैं उसके नीचे से, तो एंड व्हाट्स बिलो, बिलो बताइए। बिलो का मतलब द फील्ड इज द कंपैरेटिवली लिटिल एंड इनसिग्निफिकेंट whirling ball on which we live, एक बॉल पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, that's called the earth. How did our planet come into being, what is made of, how were its mountains, oceans, rivers, plains and valleys found, and what's down deep if you start digging, ठीक है। तुम खोदोगे तो क्या उसमें मिलेगा, ये पहाड़ कैसे आया, नदी, जितने भी पृथ्वी पर चीजें हैं, चट्टान, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, तो वो सब क्या कहलाएगा, बताओ। व्हाट्स बिलो का मतलब पृथ्वी के नीचे क्या है, बताइए। एंड जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट व्हाट इट। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज अबाउट लाइफ, व्हाट्स लाइफ, व्हाट इज लाइफ, जो जीवन के बारे में अध्ययन करता है। The field is all living organism from the simplest one called ammonia and amazingly complex and mystifying structure we call a human being, plant or human, animal, place or vegetable, denizen of water, earth or air. If it lives and grows, this scientist wants to know more about it. देखिए, कोई भी व्यक्ति मानव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है उसके लाइफ के बारे में, कि उसका लाइफ वो जिंदा कैसे रहता है, प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, तो वेजिटेबल पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े, हवा में रहने वाले सभी जीवों के बारे में जानने की कोशिश करता है और ज्यादा, तो वो क्या कहलाएगा, उसके जीवन के बारे में अध्ययन करता है जो, बोलो नो, बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट। ऐसा। नेक्स्ट, What is the meaning of flora? फ्लोरा का मतलब फूल पौधे से संबंधित है। बायोलॉजी क्लासिफाइज लाइफ इनटू टू ग्रेट डिवीजन, प्लांट एंड एनिमल्स। बायोलॉजी ने दो भागों में बांट के रखा है, किसको, लाइफ को, ठीक है, एक प्लांट और एक एनिमल। हम लोग एनिमल के अंतर्गत आते हैं और पेड़ पौधे प्लांट के अंतर्गत। दिस साइंटिस्ट प्रोविंस is the former category, flowers, trees, shrubs, mosses, marine vegetation, blossoms, fruits, seeds, grasses and all the rest that make up the plant kingdom. मतलब प्लांट के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाएगा, फ्लोरिस। फ्लोरा मींस पेड़ पौधे, ठीक है। इसका जो अध्ययन करेगा, बॉटनी जानता, हाँ, बोटनिस्ट, बोटनिस्ट।
नेक्स्ट फाउना, फाउना मीन्स जानवर, एनिमल, क्या चीज? एनिमल के बारे में अध्ययन करता है। हाँ बिल्कुल, चलिए। Animals of every description, kind and condition from birds to bees, fish to fall, reptiles to humans are the special area of the exploration of this scientist. जो मतलब पोस्ट किंगडम के बारे में, जैसे ह्यूमन किंगडम, स्पेशलिस्ट फॉल, रेप्टाइल्स मधुमक्खी, बीज, फिशेज के बारे में अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब कि जीव जंतु के बारे में। यहाँ फल पेड़ पौधे थे, यहाँ जीव जंतु है। बताइए। Tell me. A zoologist. ठीक। Biology divided into two parts mainly. Botany and geology. Geologist जो fauna के बारे में अध्ययन करेगा, geologist, जो flora के बारे में, botanist, और जो जीवन के बारे में, biologist, और जो पृथ्वी के नीचे के बारे में, जियोलॉजिस्ट। ठीक है। और जो पृथ्वी के ऊपर क्या है, एंड एस्ट्रोनॉमर, और जो ह्यूमन काइंड के बारे में अध्ययन करेगा, मानव जाति के बारे में, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। ओके, राइट ऑन। Now we will know about one more study about all the little bugs. छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? We know there are over 6,50,000 different species of insect and millions of individuals of every species. And this scientist is interested in every one of them. उतने छोटे छोटे कीड़े 6,50,000 जातियां, उसका मिलियंस सब जाती है। ठीक है। उसमें ये व्यक्ति या ये साइंटिस्ट इंटरेस्टेड रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। जो कीड़े के बारे में अध्ययन करता है, एन एंटोमोलॉजिस्ट। पढ़े हो? भूल कैसे गया? ये सब तो पहले भी वन वर्ष टीचर्स ने करवाया। Now, Tower of Babel. Next, Tower of Babel. The linguistic scientist explores the subtle, intangible, elusive uses of the unique tool and the disengaged human being from all other forms of life to wit. Language. This person is in sort of a student, linguistic, ancient and modern, primitive and cultured Chinese, Hebrew, Icelandic, Slavic, Titanic and every other kind spoken now or in the past human beings, and not excluding that delightful housepoach known as the pidgin. English, in which a piano is described as a big box you hit arm in teeth, he cry, and in which Hamlet's famous poetry, to be or not to be. That is the question. It's translated into can do, no can do, half fashion. Can do, no can do. Do you know what is a philologist? Philo means can do, no can or no can do. This situation will one who know about these things, that is called who is a philologist. Philologist. Okay, means lover of anything. Students like philologist. I always try to learn everything. So I am also a philologist. Okay. As a student. Next, what do you really mean? What do you really mean? Next,
These linguistic scientists explore the subtle, intangible, elusive relationship between language and thinking. नहीं पता व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या? लैंग्वेज एंड थिंकिंग, सोच और भाषा के बारे में जो अध्ययन करता है, दोनों के बीच के बिटवीन मीनिंग एंड वर्ड्स, एंड इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द साइकोलॉजिकल causes and efforts of what people say and write. Semantist. He will be called semantist. कहता क्या है, करता क्या है, ठीक है, सोचता क्या है, कर देता है क्या, तो वो क्या कहलाएगा? सेमेंटिस्ट। मतलब उसके विचारों के बारे में अध्ययन और उसके शब्दों के बारे में करता है, दोनों का सामंजस्य को देखने की कोशिश करता है, तो वो सेमेंटिस्ट कहलाता है, ठीक है। हाँ, हु आर योर फ्रेंड्स एंड नाइबर्स? हु आर योर फ्रेंड्स एंड नाइबर्स? कौन तुम्हारे दोस्त हैं और कौन तुम्हारे दुश्मन हैं, मतलब सॉरी पड़ोसी हैं, ठीक है। तो ये किस में पढ़ते हो बताओ? कहते दोस्त पड़ोसी। The scientist is a student of the ways in which people live together, their family and community structure and customs, their housing, their social relationship, their form of government and their layers of caste and class. सब के बारे में ये जानने की कोशिश करेगा, कास्ट, क्लास, रिलेशंस, फैमिली, उसके बाद नाइबर्स, पड़ोसी, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? रहन सहन के बारे में, सब कुछ के बारे में बताना चाहेगा, तो क्या कहलाएगा? He will be called a sociologist. Sociologist मतलब समाज शास्त्री। वही तो तुम्हारे हर कस्टम के बारे में बताता है, दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है, उस कम्युनिटी के बारे में बताने की कोशिश करता है, तो वो क्या कहलाएगा? सोशियोलॉजिस्ट। प्लीज पाओ। Now you have to match, okay, scientist and professional field. So gauge that thing. First one is anthropologist. बताइए क्या होगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट? मैचिंग टेस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब हिंदी में बताइए। मानव शास्त्र जो मानव के बारे में अध्ययन करता है, मानव विकास के बारे में अध्ययन करता है। कहाँ है इसमें? कम्युनिटी फैमिली नहीं, यहाँ मैंने किया डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहाँ चलेगा? डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर बताइए। एस्ट्रोनॉमर जो कि खगोल ये सब का अध्ययन करता है, खगोल शास्त्र। सेलेस्टियल फिनोमेनन। सेलेस्टियल फिनोमेनन। नेक्स्ट जियोलॉजिस्ट। अर्थ, पृथ्वी का जो अध्ययन करता है। हाँ हाँ, कहाँ है? जी में जियोलॉजिस्ट, ठीक है। बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्योंकि मानव के जीवन के बारे में, मानव शरीर के बारे में देखता है। ऑल द फॉर्म्स ऑफ लिविंग मैटर। हाँ, ऑल द फॉर्म्स ऑफ लिविंग मैटर। बायोलॉजिस्ट तो कुछ कोई भी हो सकता है, दोनों फॉर्म को जो प्लांट भी और एनिमल भी, पता है। नेक्स्ट जूलॉजिस्ट। बोटानिस्ट। कहाँ है? बोटानिस्ट नहीं, बोटानिस्ट नहीं हो सकता। बोटानिस्ट सॉरी बोटानिस्ट। हाँ बोटानिस्ट बताओ पहले। तो बोटानिस्ट हो जाएगा जो प्लांट लाइफ। हाँ प्लांट लाइफ। जियोलॉजिस्ट एनिमल लाइफ। वेरी गुड। और उसके बाद फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट जो अनुमान लगाने की कोशिश करता रहता है, अनुमान ये तो फिलोलॉजिस्ट की बात किए थे, जो लवर था, सब चीज के बारे में जानने के बारे में कोशिश करता है। नेक्स्ट सेमेंटिस्ट। नेक्स्ट हाँ एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट हो जाएगा
इंसेक्ट। हाँ, जो कीड़ा मकोड़े के बारे में अध्ययन करेगा, इंसेक्ट फॉर्म्स, ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट सेमेंटिसिस्ट। सेमेंटिस्ट मीनिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड्स। हाँ, मीनिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स। सेमेंटिस्ट जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट को देखता है वर्ड्स के बारे में और उसके थॉट्स के बारे में। नेक्स्ट लास्ट बच गया सोशियोलॉजिस्ट, तो कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ चल रही है यहाँ। तो आगे समझ में एक बार फिर से बोलना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, एस्ट्रोनॉमर सेलेस्टियल फिनोमेना, और जियोलॉजिस्ट द अर्थ यानी जो पृथ्वी का अदर, बायोलॉजिस्ट ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग मैटर, बोटानिस्ट प्लांट लाइफ, जियोलॉजिस्ट एनिमल लाइफ, एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट फॉर्म्स, इंसेक्ट फॉर्म, मतलब कीड़ा उसके प्रकार, ठीक है, और फिलोलॉजिस्ट एंजियो, सेमेंटिसिस्ट सेमेंटिसिस्ट means meaning and psychological effects of words, हाँ, सोशियोलॉजिस्ट, community and family life. ओके डन। रिकॉलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ओके। अब आसान हो जाएगा, यहाँ हिंट भी दे दिया गया। अभी आप पढ़े इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे में क्या पढ़े हैं, अभी किसके अंतर्गत आता है वो? ई से शुरू होता है वो वर्ड, Entomologist, क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लैंग्वेज जो पी से शुरू होता है, philologist, वेरी गुड, फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट। सोशल कंडीशन जो कि एस से शुरू होता है, sociologist, वेरी गुड, सोशियोलॉजिस्ट। तुम नहीं बोलता। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, anthropologist, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऐसे शुरू होता है, ठीक है। मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, एस से शुरू होता है, semiphilologist, सेमेंटिसिस्ट, semanticist, और नेक्स्ट प्लांट्स जो कि बी से शुरू होता है, botanist, बोटानिस्ट बी है आगे। और द अर्थ, geologist, जियोलॉजिस्ट। और हेवनली बॉडीज, astronomers, हाँ एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट जो और उसके बाद ऑल लिविंग थिंग्स, biologist, बायोलॉजिस्ट, वेरी गुड, बायोलॉजिस्ट। एनिमल्स के बारे में, zoologist, जियोलॉजिस्ट, okay, now once again insect, entomologist, language, philologist, social condition, sociologist, history of development of mankind, anthropologist, meanings of words, semanticist, plants, botanist, the earth, geologist, the heavenly bodies, astronomer, और उसके बाद all living things, biologist, animals, geologist. Thank you very much. That's all for today.